नजर आ रही है स्लाइड्स? Yes, sir. Okay, so let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. And again, Ramazan Mubarak. May Allah give us tawfiq to get maximum benefit from this holy month. And may Allah save us all from this nasty disease and give us tawfiq to repent from our sins in this holy month. Okay. Considering the lecture फ्रॉम दिस वीक, टाइम टेबल चेंज हुआ है, आप सबको मिल गया होगा, तो टाइम स्लॉट भी थोड़ी कम हो गई है. नाउ वी हैव 1 hour and 10 minutes. टुडे आई आल्सो हैव अ मीटिंग, अनदर मीटिंग, आई हैव टू रश इन अ मीटिंग. जस्ट आई विल ट्राई टू फिनिश अ लिटिल बिट अर्ली. तो ओवरऑल जो अभी टाइम स्लॉट होगा वो 1 hour 10 minutes का है. एंड फ्रॉम दिस फ्राइडे वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंटेशंस. ठीक है, अपना टाइम नोट कर लीजिएगा. सो फर्स्ट 3 groups they are going to present in this, and your research assistant and myself would be there. And as I asked before, that we expect every student should ask questions for the learning perspective. Okay, and we'll see who has produced the best reports. And as I mentioned in my first class, I would like to convert the best reports, top maybe 3 or 4 reports, into a paper. Okay, so there will be opportunity that they can do research under my supervision, and I will try my best. We can publish that somewhere. So we need to polish that further and we will submit that. So this will be a good opportunity for all of you. You try your best in this, and now you can also start work on the second part, because there will be no further delivery for second part. I have delivered both assignment together. Okay, so the deadline for the second part is also mentioned in the same document. Marking criteria is also mentioned in the same document, so you can start work on the second part. Okay, and in parallel you need to prepare the presentations according to your turn. Yes, so let's start. Yeah, in our last lecture we discussed the CN tree. That's the one type of classification, and we discussed basically the concepts of classification, and then we were discussing how we decide, or how the basically we covered 2 algorithms. One was Hunt algorithm and C4.5. C4.5 actually also use Hunt algorithm. So the main primary goal was to discuss Hunt algorithm, how it works. Okay, and because if you have a number of attributes in your data set, then how you will decide which attribute would be a root attribute and which will be a next intermediate node, then which will be intermediate, next intermediate. Because the developing of tree, that matters in classification, and the developing of tree, how you organize the nodes, root node, then intermediate node, then child, they matter a lot in the efficiency, in the complexity of your tree. Okay, our goal is to put those nodes on the top where the CN3 algorithm can classify the record as early as possible. जितनी जल्दी आपका एल्गोरिथम रिकॉर्ड को क्लासिफाई कर लेगा, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी ट्री की. ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि टू क्लासिफाई अ रिकॉर्ड, एल्गोरिथम नीड टू ट्रैवर्स मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स. ये बात क्लियर है? आपको समझ आ रही है? राइट. लास्ट एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो, वी टुक वन केस, all the person who got refund, they were not cheater. Right, याद है आपको?
all the persons who got refund, they were not cheater. Now अब इसी एक एट्रीब्यूट पे आप पूरे रिकॉर्ड का डिसाइड कर सकते हैं. तो वी ऑलवेज विल प्रेफर कि ये चीज जिसमें ये जो कैटेगरी थी रिफंड हुआ है या नहीं हुआ, इसको हम टॉप पे रखें. बिकॉज अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसको रिफंड हुआ है, जिसका रिफंड एट्रीब्यूट में रिफंड ट्रू आ रहा है, यू गॉट द रिफंड, तो हमें बाकी सारे एट्रीब्यूट कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज आपका क्लास लेबल रिफंड अगर है तो यस है. You can classify the whole record just based on this attribute. Our preference would be to keep this on the top, ताकि बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करने की जरूरत ना पड़े. समझ आ रही है बात कि नहीं? Yes, समझ आ रही है सर. Okay, so that was the goal. अब ये तो चलो एक चीज क्लियर होगी. जब आपका बहुत बड़ा ट्री बनता है, जब आपके क्लास के एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है. कैसे हम डिसाइड करें विच नोड शुड गो ऑन द टॉप, हाउ विल यू डिसाइड? उसके लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वाला याद है किसी को कुछ? सर गेन और एंट्रोपी, गेन और एंट्रोपी हमने यस यस. सो द मेन इसके पीछे एक मैथ का फार्मूला है पूरा, जिसकी बेस पे यू कैन डिसाइड किस एट्रीब्यूट को टॉप पे जाना चाहिए. And that formula is based on information gain and entropy. Entropy कहते हैं disorder को, ठीक है, which means impurity. इस एट्रीब्यूट के अंदर कितनी मिलावट है, कितनी impurity है. अगर ये जो एट्रीब्यूट है ना, जिसकी मैंने बात की आपको कि जिसको रिफंड हुआ है वो चीटर नहीं है, ये प्योर एट्रीब्यूट है. क्योंकि इसका एक रिकॉर्ड भी इम्प्योर नहीं है. सारे रिकॉर्ड के अगेंस्ट अगर रिफंड है तो क्लास लेबल भी यस है, सॉरी चीटर नो है. अगर रिफंड नहीं है तो चीटर है. तो ये प्योर एट्रीब्यूट कहलाता है. इसका इंफॉर्मेशन गेन विल बी वेरी हाई. अगर कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हों जिनकी क्लासिफिकेशन बड़ी क्लियर ना हो, कुछ यस भी हो कुछ नो भी हो, इसको कहते हैं इम्प्योरिटी और एंट्रोपी. जितनी इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, इंफॉर्मेशन गेन कम होता जाएगा. और जितना इंफॉर्मेशन गेन कम होगा, उसकी प्रायोरिटी ट्री में नीचे आती जाएगी. दैट इज सो सिंपल. क्लियर? यस सर. Okay, so today we'll take one full example, which we call it detour, so that you can understand this through complete example. Okay, detour mean इसको हम कहते हैं कि आज हम नए कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि जो पिछला पढ़ा है लेक्चर में उसको एक एग्जांपल के थ्रू रन करेंगे, so that it should be very clear. Because बहुत सारे प्रोजेक्ट में you use decision tree, you should know very clear that how this work and how this hunt algorithm work. Okay, so decision tree continued. ये दो स्टेप मैंने आपको बताए थे in classification, particularly in decision tree. One is induction, other is deduction. आज आपने ज्यादा मुझे बताना है. What is induction, what is deduction? Don't look at the slides. जल्दी बताएं. आमना, can you tell what's the induction, what's the deduction? सर डिसीजन ट्री में सबसे पहले जब हम डाटा को इस कंडीशन में जब भी हम डाटा को जनरेट करेंगे या कोई भी डाटा हम फॉर एग्जांपल लेंगे, तो हमारे पास इनपुट होगा और कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होगा जिसकी बेस पर हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, और इसी तरह से फिर हम उसकी बेस पर डिसाइड करके तो एक आउटपुट जनरेट होगी हमारे पास डिसीजन. आपने थोड़ा सा, it's not very clear answer. Anyone else? फरजाद, जी सर. क्या है इंडक्शन डिडक्शन? स्लाइड से नहीं पढ़ना आपने, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बड़े क्लियरली डिफाइन किया. व्हाट इज इंडक्शन एंड व्हाट इज डिडक्शन? सर पहले हम
उसमें से फीचर सिलेक्ट करेंगे डिसीजन ट्री के हम्म। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गेन, जो एंट्रोपी हमने निकाले हैं उन पर से हम पहले वो निकालेंगे सारे। मुझे ये और बताएं दोनों स्टेप में क्या फर्क है? इंडक्शन कौन सा स्टेप होता है, डिडक्शन कौन सा होता है? बस। सर इंडक्शन में हमने पहले क्लासेस बनानी होती है, डिडक्शन में हमने न्यू क्लास प्रिडिक्ट करनी होती है। हाँ ठीक है। एक्चुअल इंडक्शन डिडक्शन है क्या? जब आप अपने क्लासिफायर को ट्रेन कर रहे होते हैं, ये इंडक्शन है। सो सिंपल। एंड व्हेन यू आर टेस्टिंग इट, दैट इज डिडक्शन। ठीक है। दूसरे लफ्जों में, इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, क्लासिफायर इज बिल्डिंग द ट्री। वो अपना ट्री बिल्ड कर रहा होता है उस वक्त। डिडक्शन में वो अपने ट्री को इवेल्युएट कर रहा होता है। दैट्स इट। ओके। सो इंडक्शन जनरेट द डिसीजन ट्री। आप व्हेन यू से इवैल्यूएशन, मतलब उन्होंने और आपने ट्री बना लिया यूजिंग द मेथड्स ऑफ एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन, तो इवैल्यूएट क्यों करना होगा आपको? हमें क्या पता जो उसने ट्री बनाया है वो ठीक है कि नहीं बनाया, ठीक है कि नहीं, या कितने % ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? सर मतलब वो ओवरफिटिंग का मसला या नहीं, मैं कहता कुछ हूं और? देखें, जब जब आपने आप जब आप ट्रेनिंग डाटा दे रहे हो एल्गोरिदम को, ठीक है, आपको कहीं ट्री नजर थोड़ी आता है। वो तो एल्गोरिदम खुद बना रहा है ना अपने अंदर। जी। आपको तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बेसिकली वो ट्री के पीछे रूल्स हैं, रूल बनाता है। अब आपने उन रूल्स को टेस्ट तो करना है कि नहीं करना? ठीक है। हाँ आपको कैसे पता चलेगा कि जो ये रूल बने हैं इस पे कितने % एक्यूरेट हैं ये रूल? वही आपकी एक्यूरेसी है क्लासिफिकेशन की। ठीक है। वो आप तभी पता कर सकते हैं ना जब अब आप उसी क्लासिफायर को नया डाटा दें जिसमें रिकॉर्ड एट बाकी एट्रीब्यूट सारे के सारे हों, लेकिन क्लास लेबल ना हो। सर समझ आ गई। तब आप पता कर सकते। अब आपके पास लेबल है लेकिन आपने छुपा लिया है एल्गोरिदम से उसको। आई वांट टू चेक व्हाट लेबल एल्गोरिदम असाइन टू दिस रिकॉर्ड, एंड देन आई विल सी वेदर इट असाइंड करेक्ट और नॉट करेक्ट। अब जो उसकी रेशो होगी करेक्ट की, वही एक्यूरेसी बन जाएगी। ओके। यस सर। सो डिडक्शन इज predict the class of the new data, or in other words, you are testing the tree or decision tree or rules, decision rules। बेसिकली आप इस फेज में डिसीजन ट्री को या डिसीजन रूल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। दैट इज डिडक्शन। जब आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है, ग्राउंड ट्रूथ आपके पास है, लेबल डाटा आपके पास है, आपने उसको क्लासिफायर को नहीं दिखाया। अब आपने कोई 500 रिकॉर्ड उससे क्लासिफाई करवाए, 500 में से उसने 480 ठीक किए, ठीक है, या आपने चले सिंपल रखने के लिए 100 रिकॉर्ड उसको दिए जिसमें से उसने 95 ठीक किए, 5 गलत किए। अब आप जहां पर ये क्लासिफायर डिप्लॉय करेंगे, आप इस एक्यूरेसी से डिप्लॉय करेंगे कि यार ये क्लासिफायर 95% करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद जो डेटा मजीद आएगा उसमें में भी अब क्लास लेवल हो ही ना, ग्राउंड ट्रूथ भी ना हो, क्योंकि आपने उसको टेस्ट कर लिया। अब उसकी रियल इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट होगी। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके। Yes, so let's run a complete example which is called detour। ये थोड़ी सी मैंने एग्जांपल पिछले उसमें वो की थी, वैसे हमने दूसरी एग्जांपल एक रन की थी टैक्स वाली। ओके, चीटर और नॉट चीटर। हियर वी वांट टू टेक एग्जांपल। ये डाटा है और इस तरह से मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए भी रन करा रहा हूँ, एग्जाम में मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन देने वाला हूँ। आपको एक मैं लंबी कोई टेबल दे दूंगा जिसमें कोई 12-15 एट्रीब्यूट हों, और आपसे कहा जाएगा कि इसका पूरा रन करें आप प्रोसेस, हंट एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करें। तो यू हैव टू डू दिस। दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग दिस ऑल इन माय टुडेज क्लास। तो ये एक टेबल है
जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ये स्टूडेंट से रिलेटेड, सॉरी पीपल का डेटा है आई वुड से, जिसमें एज एक एट्रीब्यूट है, इनकम है, उसका स्टेटस है, स्टूडेंट है कि नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग है। बताना हम ये सारे इनपुट एट्रीब्यूट हैं, यहाँ सारे यहाँ तक। ये जो है ये आउटपुट एट्रीब्यूट है। ये हम चाहते हैं क्लासिफायर हमारे लिए काम करे। हमने बताना ये है कि वेदर दिस पर्सन विल बाय कंप्यूटर और वेदर दिस पर्सन विल नॉट बाय कंप्यूटर, दैट वी वांट टू क्लासिफाई। ओके, तो अब हमने हंट एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है इसके ऊपर, एंड वी विल सी कि हाउ हंट एल्गोरिथम विल जनरेट ट्री इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ टेबल। नोड्स का ऑर्डर क्या होगा ट्री में, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो फर्स्ट वी विल इंप्लीमेंट स्टेप 1, ट्रेनिंग सेट डाटा। ये आपके पास ट्रेनिंग डाटा है सारा। यूज ऑल एट्रीब्यूट्स फॉर क्लासिफिकेशन, यूज इंफॉर्मेशन गेन एज ए सिलेक्शन मेथड। यस, अब इसके अंदर हमें कैसे पता चले कि जी रूट नोड एज होनी चाहिए या इनकम होनी चाहिए या स्टूडेंट होनी चाहिए या क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। कहां से हम ट्री स्टार्ट करें? विच शुड बी योर फर्स्ट नोड, और रूल वही है कि दैट शुड बी द फर्स्ट और रूट नोड विच हेल्प अस टू क्लासिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ताकि हमें बाकी ब्रांचेस में जाने की जरूरत ही ना पड़े। बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, highest number of information given. यस, तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका एक एट्रीब्यूट हमने डिसाइड कर लिया था, अगर आपको याद हो। एज को हमने इवेल्युएट किया था, और एज को अगर हम जहन में रखें तो हमने उसको, मैं बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। एज कैसा एट्रीब्यूट है, कोई बताएगा? ये भी अच्छी बात है, मैं आई कैन आस्क क्वेश्चन। विच एज इज, हमने 3 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। कंटिन्यूअस। यस एग्जैक्टली, एज इज अ कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट। और दूसरे 2 टाइप्स कौन सी हैं? Nominal or ordinal. यस, ऑर्डिनल और नॉमिनल। तो ये आपने जहन में रखने हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो ये एज क्योंकि कंटिन्यूअस है, अब आपने जो कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स होते हैं, यू नीड टू समहाउ कन्वर्ट देम इनटू डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। तो आपने उसकी कोई ग्रुप बनाने होते हैं। तो हमने इस एज के 3 ग्रुप बनाए थे लास्ट लेक्चर में, यूथ, मिडिल एज और सीनियर। ये 3 ग्रुप हैं। लेस देन 30 दैट इज यूथ, 30 to 40 मिडिल एज, और ग्रेटर देन 40 सीनियर। ये 3 हमने इसलिए बनाए थे कि इन 3 के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी ये है कि इनमें एक ग्रुप ऐसा है, इसको देखें जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर कोई एक भी क्लासिफिकेशन एरर नहीं है, डाउट नहीं है। और वो कौन सा है? मिडिल एज ग्रुप। जितने भी लोग 31 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के दरमियान हैं, 30 से 40 के दरमियान हैं, उन सब ने कंप्यूटर खरीदा है। ठीक है, इस केस में ये क्लैरिटी मौजूद है। तो मिडिल एज का फैसला हो चुका। एनी पर्सन हु इज अ मिडिल एज, ही विल बाय, शी विल बाय कंप्यूटर। तो ये क्या बन जाएगा? कोई बताएगा ये क्या बनेगा? ये लीफ नोड बन जाएगी, बिकॉज इससे आगे जा नहीं सकते हम। डिसीजन आ चुका है, सारे के सारे क्लासिफिकेशन यस में है, देयर इज नो एरर, वी डोंट नीड टू एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है, अब मैं इसको प्रायोरिटी पे इसलिए रख रहा हूं एज को कि यार इसमें एक चंक ऐसा है जो भी रिकॉर्ड 30 to 40 के दरमियान लाई करेंगे, एटलीस्ट मुझे उनके लिए कोई और एट्रीब्यूट को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्लासिफायर 100% गारंटी के साथ उसको क्लासिफाई कर सकता है। एग्री? Yes, sir. तो ये एडवांटेज होगा एज को टॉप पे रखने का। और हमने वैसे एज का गेन भी निकाला था, अगर आपको याद हो।
एज का जो इंफॉर्मेशन गेन था वो इनकम के गेन से भी ज्यादा था, स्टूडेंट के गेन से भी ज्यादा था, क्रेडिट रेटिंग के गेन से भी ज्यादा था। तो जब इसका गेन ही ज्यादा है तो फिर तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो द एज वुड बी ऑन द टॉप। ओके, अब हमने ये करना है, एज का फैसला हो चुका तो ये टॉप पे जाएगी। इसकी एक ब्रांच का फैसला हो चुका विच इज लीफ नोड 30 to 40 के दरमियान। अब जो काम असल रहता है वो एक इसका रहता है और एक इसका रहता है। क्लियर और नॉट? अब इस एज के अंदर से अंदर कंसीडरिंग एज, या तो हम पहले यूथ पे चले जाएं या हम पहले सीनियर पे चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं। लेट्स गो टुवर्ड्स यूथ। अब हम एज से यूथ की तरफ जाते हैं तो हमें ये टेबल मिलता है। अब इशू ये है कि इस टेबल में से सेकंड इंटरमीडिएट नोड क्या होगी रूट के बाद, ये हमने फैसला करना है, विच इज दिस। मैंने ये पार्ट कट कर लिया उसमें से। एज का फैसला हो चुका है। अब एज की जो एक ब्रांच है, एक ये जो ब्रांच यहां आएगी विच इज मिडल एज, इसका फैसला हो चुका है, इसको जरूरत नहीं करने की। यूथ के अंदर कंट्राडिक्शन है, वी नीड टू एक्सप्लोर मोर एट्रीब्यूट्स। तो मोर एट्रीब्यूट एक्सप्लोर करेंगे तो फिर वही प्रोसेस है, हमें इनकम का भी गेन निकालना है, स्टूडेंट का भी गेन निकालना है, क्रेडिट का भी गेन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वी ऑलवेज यूज, क्या करते हैं जी, टोटल क्लास का गेन, इसका इसका गेन, ये टोटल गेन है। ओके, टोटल क्लास का गेन माइनस इनकम का गेन। ओके, बल्कि इनकम का गेन नहीं, इनकम की सर ये उल्टा नहीं हो गया? इनकम की इंट्रोपी, सॉरी सर ये उल्टा नहीं हो गया? पहले हमने यूथ का वो निकाला है यहाँ पे 0.97 और इनकम में से माइनस करा। नहीं ना, यूथ का थोड़ी निकाला हमने, ये आपका 0.97 टोटल है, ये यूथ का नहीं है खाली, ये तो बल्कि हाँ सॉरी ये यूथ का है, यू आर राइट, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। ये n है, ये n है, ये n है, ये p है, ये p है, so that's why I have written 2 3। तो आपने टोटल में से कैटेगरी का माइनस करना होता है ना। जी सर। ठीक है, तो टोटल का आपके पास 0.97 आ गया। अब आपने इंट्रोपी निकालनी है इनकम की। ठीक है, इनकम जो है वो कितनी इम्प्योर है, उसके लिए ये फार्मूला था। सॉरी ये, अब इसमें अगर आप देखें 1/5 इनकम के अंदर कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, हाई है, लो है और ये मीडियम है। क्लियर है? जी सर। अब ये जो पहला शो कर रहा है ना 1/5, ये लो को शो कर रहा है, क्योंकि इस कैटेगरी में एक ही वैल्यू है, तो मैंने 1 लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल कितने रिकॉर्ड हैं 5, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई इसी का गेन। अब इसके लिहाज से, लो के लिहाज से क्या इंफॉर्मेशन गेन बनता है क्लास में, लो के अगेंस्ट एक ही यस है बस, क्योंकि लो और हाई नहीं है तो एक यस है, तो ये बन जाएगा 1p और n0 प्लस। अब आप देख लें दूसरे की मीडियम, मीडियम के कितने रिकॉर्ड हैं 2, 2 टोटल कितने हैं 5 5 मल्टीप्लाई। अब इसका गेन क्या है, एक मीडियम का नो है, एक मीडियम का यस है, तो इट विल बी 1,1 1p 1n प्लस 2/5, ये अब हाई का है, इसमें पॉजिटिव 0 है, दोनों ही नेगेटिव है, यू कैन सी हियर बोथ आर नो। ठीक है, तो इनको जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यूथ इनकम विच इज 0.4। सर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 क्या शो कर रहा है? कहां पर 5 मल्टीप्लाई,
ये तो आई है, ये कह रही हैं आप, Yes, sir. ये तो Okay. इंफॉर्मेशन है, ये तो आई है, इंफॉर्मेशन गेन को शो कर रहा है। ओके, नाउ आपके पूरी इनकम का, यूथ का सॉरी, जो इंफॉर्मेशन गेन है वो 0.97 है, और इसमें से जो इंट्रोपी है इनकम की वो 0.4 है। तो आपने माइनस किया तो ये बचा, ये प्योरिटी है। इंफॉर्मेशन में से इम्प्योर निकाल दिया आपने तो प्योरिटी बच गई, ये इनकम एट्रीब्यूट की प्योरिटी है। इसी तरह इसी फार्मूले को हम स्टूडेंट के लिए करेंगे, तो उसकी प्योरिटी क्या आती है जी, इंफॉर्मेशन गेन 0.97। इसी तरह हम यूथ का क्रेडिट के साथ करेंगे, उसकी प्योरिटी क्या आती है 0.02। अब इन तीनों प्योरिटी में से ज्यादा कौन सी है, 0.02 ज्यादा है या 0.97 ज्यादा है या 0.57 ज्यादा है? 0.97 सबसे ज्यादा है, एग्री? तो जो सेकंड नोड बनेगी एज के बाद वो कौन सी होगी? यूथ की सर, यूथ तो ब्रांच बन गई ना, अगली स्टूडेंट की नोड सर। स्टूडेंट की नोड बच्चे के बनेगी। स्टूडेंट हो। यस, तो अगली नोड जो बनेगी वो स्टूडेंट की बनेगी। लार्जेस्ट गेन वाज 0.97 फॉर स्टूडेंट्स। सो ये आ गई आपकी एज, यूथ इसकी ब्रांच आ गई। उसके बाद जो नोड है वो स्टूडेंट की है। अब स्टूडेंट में से भी हमने कैटेगरी की स्टूडेंट है या नहीं है। जो नो वाले हैं वो यहां आ गए और जो यस वाले हैं वो यहां आ गए, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट नहीं है तो क्लासिफिकेशन बड़ी क्लियर है, जो लीफ स्टूडेंट नहीं है उसने खरीदा ही नहीं है। इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट है, या आप यूं कह लें प्योरिटी इज मैक्सिमम, और जो स्टूडेंट है उसने मस्ट खरीदा है, ये भी प्योरिटी हाई है। तो बताएं मुझे, फर्दर इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है? नो सर। क्योंकि एक लेबल भी अनसर्टन नहीं है। सर ये होमोजीनियस हो गया, इसलिए हम इसको दोबारा नीचे में यस, एक्सप्लोर एक्सीलेंट, करेंगे। यस एब्सोल्युटली, ये होमोजीनियस हो गया। जब होमोजीनियस हो जाए तो हम लीफ नोड डिसाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पे आके यहां हम लीफ नोड बना देंगे, नो और यस, राइट। अब हमारा, अगर आप, लेट्स गो बैक, सॉरी, यस, ये पार्ट सॉल्व हो गया पूरा। ये हमारा वैसे ही फिक्स हो चुका है मिडिल एज के लिए। यहां भी होमोजेनिटी है, तो होमोजेनिटी है, ये भी क्या बन जाएगी, लीफ नोड बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अब ये राइट साइड बचेगी, सीनियर वाली। तो इफ यू गो हेयर, ये हो चुका। मिडिल एज का फैसला पहले ही हो चुका है कि मिडिल एज वाले सारे ही बाय कर रहे हैं, अगेन होमोजीनियस। सो द लेफ्ट राइट पार्ट इज लेफ्ट ओनली, सीनियर पार्ट दिस। अब इसके अंदर विल अगेन गो हेयर एंड वी विल सी कि सीनियर के अंदर विच शुड बी द नेक्स्ट एट्रीब्यूट, इनकम, स्टूडेंट और क्रेडिट। जरूरी नहीं है कि जो यूथ में स्टूडेंट बना है तो इधर भी स्टूडेंट बने, नॉट नेसेसरी। So then now we are considering age and senior. For the income attribute, इनकम की हमने अगेन इसका जब इंफॉर्मेशन गेन निकाला है तो 3 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं, तो 0.97 इसका इंफॉर्मेशन गेन आ गया। अब हम हर एट्रीब्यूट की इंट्रोपी निकालेंगे, इंप्योरिटी निकालेंगे और इस इंफॉर्मेशन गेन में से माइनस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टेक इनकम। इनकम हमने ली, उसके अंदर डिसऑर्डर क्या है, इंट्रोपी कितनी है। अब आप इनकम के वही अगेन लो के 2 रिकॉर्ड हैं और मीडियम के 3 रिकॉर्ड मीडियम के 3 रिकॉर्ड हैं। तो पहले लो लिए हमने, इसे 2/5, तो इन लो में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 50-50 चांस है। सर आई थिंक इसमें क्रेडिट आएगा। कर लिया आपने? सर ये मैंने इस टेबल देख के
यस किया। Okay, yeah, that's good. Plus next is medium 3/5 और उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी 2/1 मीन इफ वी टेक मीडियम तो 2 यस है 1 नो है, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। सो इंफॉर्मेशन इंट्रॉपी बन गई 0.95, तो प्योरिटी कितनी रही 0.97 minus 0.95, purity is this for income. Similarly, we'll calculate purity for student, which is again 0.02, दोनों बराबर हो गए। थर्ड वन इज क्रेडिट। अगर हम क्रेडिट की बात करें इस केस में इफ यू टेक क्रेडिट के अंदर कितने किस्में हैं जी, 2 हैं, ग्रुप्स 2 बन सकते हैं, एक्सीलेंट और फेयर। एक्सीलेंट ने इसको जिताया है, एक्चुअली एक्सीलेंट इज और फेयर भी बोथ आर करेक्ट। एक्सीलेंट के अगेंस्ट एक भी नो नहीं है, सारे यस हैं, तो यहां से प्योरिटी बड़ी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये फेयर के अगेंस्ट भी 0.2 क्लैरिटी मौजूद है और एक्सीलेंट के अगेंस्ट भी बड़ी क्लैरिटी है 3.0, ठीक है। तो इंप्योरिटी है ही नहीं इसके अंदर, इंट्रोपी 0 हो गई। जब इंट्रोपी 0 होगी इंफॉर्मेशन गेम मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें से माइनस करना है इंट्रोपी को विच इज 0, तो यू विल गेट अगेन द सेम वैल्यू 0.97। समझ आ रही कि नहीं? जी सर। तो नाउ योर इनकम इज credit is highest. It means this will be our second split. If it is a second split, so then see, एज के बाद मैंने क्या कर लिया, क्रेडिट आ गया ऊपर। जब क्रेडिट से स्प्लिट किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, एक फेयर का एक एक्सीलेंट का। फेयर में भी होमोजेनिटी है, एक्सीलेंट में भी होमोजेनिटी है। जब दोनों में होमोजेनिटी है तो दे विल बिकम लीफ नोड्स, and leaf node mean this is fair no and excellent yes। और इसके बाद हमारे पास कोई बचा ही नहीं है, तो basically we have generated the whole tree. This is your complete tree. Any question? अब ये ट्री आपको कहीं बनता हुआ नजर नहीं आएगा जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। असल पढ़ाने का आपको मकसद ये था कि when you are training मॉडल एनी क्लासिफायर, उसके पीछे ट्री बिल्ड कैसे हो रहा होता है, ये उसका क्रक्स है। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट मॉडल यूज, ठीक है। यही उसका ब्रेन है मॉडल का, जिसकी बेस पे वो फ्यूचर में डिसाइड करता है। अगर ये ट्री गलत बिल्ड हो जाए तो एक्यूरेसी इफेक्ट करेगी। क्लियर? सो दिस इज द अब ये मैंने छोटी एग्जांपल ली ताकि मैं सारी ब्रांचेस आपको एक्सप्लोर कर सकूं, बट डेफिनेटली जब हम डाटा सेट लेते हैं रियलिटी में तो बहुत बड़े ट्री बनते हैं। उस ट्री में फिर हमें ये भी देखना होता है कि इसकी प्रूनिंग की जा सकती है फर्दर कि नहीं की जा सकती, क्योंकि इस ट्री की तो कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं है तकरीबन। बट व्हेन यू हैव आई डोंट नो थाउजेंड्स ऑफ नोड्स, तो उस केस में तो कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि ट्री का जो ट्रैवर्सिंग है दिस टेक्स टाइम। आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ट्री की ट्रैवर्सिंग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, सो दिस विल बेसिकली जनरेट कॉम्प्लेक्सिटी। तो उस केस में हम हमेशा कोशिश करते हैं पहले जो ट्री बने वो ऑप्टिमाइज्ड बने, प्लस फिर भी हम देखते हैं क्या उसकी प्रूनिंग हो सकती है। ओके, अब ये ट्री कैसे यूज होगा, ये है स्टेप 2। अब तक हमने जो इस स्लाइड तक किया है ये स्टेप 1 खत्म हुआ है। दिस इज स्टेप 1 जिसके अंदर ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के अंदर आपका ट्री बिल्ड हो गया मुकम्मल। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 इज नाउ टेस्टिंग ऑफ दिस ट्री, विच इज अब आपने ये नया डाटा दिया है, ठीक है, जिसके साथ ये क्लास लेबल नहीं थे, ये अब आपको मॉडल बता रहा है। अगर थे भी आपने हटा लिए वो वैलिडिटी के लिए बट आपने ये कॉलम मॉडल को पास नहीं किया, लेकिन मॉडल इस ट्रेनिंग डाटे को सॉरी इस टेस्ट डाटे को इस ट्री में से गुजारेगा, ठीक है, इस ट्री में से पास करेगा। अगर ये किसी रूल पे फिट हो गया रिकॉर्ड तो इसका आंसर आ जाएगा।
अगर ये किसी भी रूल पे फिट नहीं होता तो मॉडल विल नॉट क्लासिफाई दिस। लेट्स सपोज आउटलायर कोई आया, इसी तरह मॉडल आउटलायर पकड़ता है ना, वो रिकॉर्ड जो कहीं क्लासिफाई ही नहीं हो रहा, so that's a noise. Clear? अब now if you see this record has age 31 to 40, क्या इसके लिए मॉडल ये एट्रीब्यूट चेक करेगा? क्वेश्चन सर रिपीट कीजिए। ये पहला रिकॉर्ड है ना, अब आपने टेस्ट कर रहे हो इस पहले रिकॉर्ड के लिए जिसकी एज 31 से 40 है, इसके लिए क्या ये एट्रीब्यूट चेक होंगे बाकी? नो सर, ट्रू होते हैं। नो सर। बिकॉज ये वाली चीज ट्रू हो गई है, तो जब ट्रू हो गई तो आपका डिसीजन हो जाएगा यस ही विल बाय कंप्यूटर। सेकंड इज लेस देन 30, जब लेस देन 30 है तो आप यूथ की ब्रांच में आ जाएंगे। सेकंड चेक होगा कि क्या वो स्टूडेंट है कि नहीं है, स्टूडेंट है फैसला हो चुका, क्रेडिट चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर स्टूडेंट नहीं है तब भी फैसला हो जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड अगेन लेस देन 30, स्टूडेंट है यस, इसके बाद भी आपका यस आ जाएगा, क्रेडिट चेक करने की जरूरत नहीं है। आखिरी रिकॉर्ड ग्रेटर देन 40, अब जब ग्रेटर देन 40 है तो आप सीनियर वाले पोर्शन में जाएंगे, इसमें आप क्रेडिट चेक करेंगे। क्रेडिट क्या है? फेयर। क्रेडिट अगर फेयर हो तो हमने ये सीखा है कि वो नहीं खरीदेगा कंप्यूटर, लिहाजा मॉडल विल प्रिडिक्ट दिस एज ए नो। अब अगर आपके पास इन सारों के लेबल अपने तौर पे मौजूद हैं तो इसमें सारे लेबल जो ग्राउंड ट्रूथ है वो मैच कर गए प्रिडिक्शन के साथ, तो इसका मकसद मॉडल की एक्यूरेसी क्या है? 100%। यस, दैट इज ऑल, दैट इज द होल आइडिया। जी सो नाउ यस सर मैं पूछना चाह रहा था कि एक ट्रेनिंग सेट है हमारे पास, तो उसमें से हमें एक वैलिडेशन सेट भी निकालना पड़ता है और टेस्ट सेट भी निकालना पड़ता है, तो मतलब ये तो 40% ऑफ डाटा उस पर चला गया है, बाकी तो बचा 60% ऑलमोस्ट जो रेशो हम यूज करते हैं। नहीं 40% नहीं चला गया, वैलिडेशन के लिए हम नहीं निकालते होते, हम टेस्ट के लिए निकालते हैं। और उससे जाने से क्या हुआ है, देखिए डाटा, जब आप डाटा मशीन लर्निंग अप्लाई करते हो डाटा की कमी नहीं होती, आपके पास डाटा इनफ होता है। आपने 80% डाटा ट्रेनिंग में यूज कर लिया, ठीक है, ये तो आप वो डाटा ले रहे हो जो शायद पिछले साल का पास का डेटा है, ठीक है, आपने ट्रेन कर दिया मॉडल को, टेस्ट भी आप उसी डाटे पे कर रहे हैं, लेकिन डाटे के अंदर कोई ड्रिफ्ट नहीं आया, शर्त ही होनी चाहिए, चेंज नहीं आई। तो कंपनी को क्या मसला है, पिछले साल का डेटा आपने को दे दिया, उसने आपने उसको टेस्ट करके हाँ ये इसकी एक्यूरेसी निकली है, अब आपने वो वो डिप्लॉय कर दिया वहां पर। तो अब जब वो डिप्लॉय हो चुका, अब तो सारा डेटा टेस्ट है उसके लिए, अब तो सारा डेटा टेस्टिंग है। ठीक है सर। और फिर भी इसमें इंटेलिजेंट होती है। लेट्स सपोज अगर कंपनी कहती है कि यार ठीक है वो हमने डाटा आपको दिया है, लेकिन हमारे डाटे में ड्रिफ्ट भी होता है, सेल का डेटा है, ठीक है, सीजनल चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, अब क्या होगा? तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको मॉडल को जो भी ट्रेनिंग है करके आपने डिप्लॉय कर दिया, अब आप उसका ट्रेनिंग मोड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो सीजनल चेंजेस आएंगी वो मॉडल को ट्रेनिंग के लिए चाहिए, अदरवाइज तो फ्यूचर में वो सीजनल उसको पिक नहीं करेगा। ओके, तो उस केस में हम ऑन गोइंग ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट इज इसमें अब आपका जब ट्री बन जाता है ना, तो इससे फिर रूल बनते हैं इस ट्री से। एक्सट्रैक्टिंग क्लासिफिकेशन रूल फ्रॉम ट्रीज रिप्रेजेंट द नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इफ देन रूल। तो रूल आपके सारे इफ देन होते हैं, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। वन रूल इज क्रिएटेड फॉर ईच पाथ। ये जो एक पाथ बना है ना आपका, ये एक रूल है, ये जो एक पाथ बना है ये सेकंड रूल है, ये थर्ड रूल है, ये इसका फोर्थ रूल है, और ये इसका
फिफ्थ रूल है आखिरी, 5 रूल बनेंगे इसमें। Each attribute value pair along a path form a conjunction. ओके, जहां पर पेयर बनता है वहां पर कंजंक्शन बनता है कि आपके पास 2 रास्ते हैं, इधर जाना है या इधर जाना है। द लीफ नोड होल्ड द क्लास प्रेडिक्शन, जब भी आप लीफ पे पहुंच गए ये आपका प्रेडिक्टेड लेबल है। रूल्स आर इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड, ये उसने बना दिए। ये आपका वही ट्री है पिछली स्लाइड वाला, ये उसके रूल बन गए। इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 30 एंड स्टूडेंट नो, देन कंप्यूटर बाय नो। If age is less than 30 and student yes, then computer by yes. If age is 31 to 40, then computer by yes. अब इसके लिए उसने देखा कोई चीज चेक नहीं की, और क्यों? ये वाला रूल है, इसके अंदर डायरेक्ट लीफ नोड ही है। Okay? If age is greater than 40 and credit rating excellent, then by computer yes. If age is greater than 40 and credit rating fair, then computer by no. तो ये 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताया था 5 रूल इसमें बनेंगे, वो 5 ही है। इसकी बेस पे आपका मॉडल प्रेडिक्शन करेगा। ओके, सो नाउ वाइंड अप दिस। व्हाट आर द एडवांटेजेस आफ्टर डिसीजन ट्री? एक तो ये कि ये इनएक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट, आपके ट्रेनिंग मोड में एक दफा ये वो बन जाए तो देन आपको सिर्फ रूल को मैच करवाने। एक्सट्रीमली फास्ट, ट्री की जो ट्रैवर्स कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपको पता है, आई थिंक वो लॉग में होती है, ठीक है, और अगर बाइनरी ट्री है तो उसकी और भी कम होती है। इजी टू इंटरप्रेट फॉर स्मॉल साइज ट्रीज, अगर कोई आप छोटे, जिस तरह मैंने एग्जांपल ली, तो आप इसको इंटरप्रेट करना भी इजी है। हमने सारी ब्रांचेस इंटरप्रेट की इसकी। एक्यूरेसी इज कंपेरेबल टू अदर क्लासिफिकेशन टेक्निक्स फॉर मेनी सिंपल डाटा सेट्स। डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी इज क्वाइट गुड, ठीक है। हाँ, आप न्यूरल नेटवर्क और इन चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते, बट इन 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 क्लासिकल मशीन लर्निंग जिसमें डीप लर्निंग नहीं होती, उसमें इसकी एक्यूरेसी क्वाइट गुड है, जितने मॉडल और हैं। वेरी गुड एवरेज परफॉर्मेंस ओवर मेनी डाटा सेट्स। डिसीजन ट्री में अवॉइड ओवरफिटिंग, ठीक है। देखें बच्चे ने आधी शर्ट पहनी है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। द जनरेटेड ट्री मे ओवरफिट द ट्रेनिंग डाटा। कैसे जी, कोई बताएगा? सर हम उसको इतना ज़्यादा ट्रेन कर देंगे तो मतलब उसको कोई जनरलाइज रूल नहीं मिलेंगे, या तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर दें या डाटा हमारे पास कम हो तो वो बिल्कुल ही उसके ऊपर ही फिट कर हो जाएगा और वो उन्हीं रिकॉर्ड को डाटा ही अगर प्रेडिक्ट हाँ कर सकेगा। कम होगा, देखें इनकी सिंपल सी एग्जांपल है। ओवरफिटिंग ये है कि आपने अननेसेसरी ट्री की ब्रांचेस बनाई हैं, दैट इज ओवरफिटिंग, सिंपल। मसलन वो ब्रांच कोई डिसीजन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, आपने फिर भी वो ट्री में बनाई है, ये मॉडल को कंफ्यूज करेगी। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं यही कहूँ, ये जो पिछली एग्जांपल है कंप्यूटर बाय करने की, मैं कहता हूँ कि अगर यार एक पर्सन है उसकी आई का कलर अगर ब्लू है तो वो कंप्यूटर बाय करेगा। डज इट मेक सेंस? नो सर। डाटा तो है ये, अगर मैं डाटा कहीं से कलेक्ट कर रहा हूं तो पर्सन की आईज का डेटा भी आ रहा है मेरे पास, बट डज इट मेक सेंस इन द आउटपुट? पर्सन की आई का कलर ब्लू हो, ग्रीन हो, वट एवर, इसका कंप्यूटर बाय करने से क्या रिलेशन है? तो अगर आप इसकी ब्रांच बनाएंगे ट्री में, उसका कोई फायदा नहीं है। दिस विल कंफ्यूज द मॉडल, दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। अंडरफिटिंग ये होता है कि अगर कोई ब्रांच बननी चाहिए थी और आपने नहीं बनाई, दैट इज अंडरफिटिंग, ठीक है। आपका डाटा स्पार्स है, बहुत सारे नल हैं,
इनफ रिकॉर्ड नहीं है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ अंडर फिटिंग। अब ओवर फिटिंग में इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम ट्री की प्रूनिंग भी करते हैं ओवर फिटिंग को खत्म करने के लिए। अब मैं ये कहूंगा कि अगर कोई ट्री में ये ब्रांच बनी हुई है, ठीक है, अगर पहले बात तो ये कि ब्रांच बनाने से पहले इस डाटे को निकाल दें, आप इस एट्रीब्यूट को भी निकाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम कहेंगे प्री प्रूनिंग। आपने ट्री बनाने से पहले ही उसका इलाज कर दिया, रिमूव कर सर दिया। सर मतलब हम जब स्प्लिट कर रहे हो ये उससे पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? आपने इसको मसलन ट्री जनरेट करने से पहले उड़ा दिया, चले स्प्लिट के वक्त ही कर दिया, ट्री की ब्रांच में वो नहीं आया, ये प्री प्रूनिंग है सारी। ठीक, आपने डाटा में से देखा, खुद मैन्युअली इंस्पेक्शन की, और हम देखते भी हैं कि कुछ जिसको हम कहते हैं ना कि यार ये जो क्लास लेबल में ना ये फीचर इंपॉर्टेंट है, ये फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेसिकली प्रूनिंग ही है। अब ये जो आईज का कलर है, अगर ये एक एट्रीब्यूट हो आपके डाटा में, would it make any sense or would it contribute in the classification? No. तो आप इसको प्री प्रूव नहीं कर दें। क्यों आप इसकी इंफॉर्मेशन गेन निकाल रहे हैं, सारा कुछ निकाल रहे हैं, ट्री भी बिल्ड कर लिया, इसने तो कोई वैल्यू ऐड नहीं की। सो व्हाई कांट वी डू दिस इन प्री प्रूनिंग? अगर आपने गलती से बना भी दिया, फिर आप पोस्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप जब टेस्ट कर रहे हैं, आप ये वेरीफाई करें कि कोई ऐसी ब्रांच आपके ट्री में है जो यूटिलाइज नहीं हो रही। मुझे नहीं पता, एज एग्जांपल लेट्स सपोज कोई भी टेस्ट डाटा इस ब्रांच से रिलेटेड है ही नहीं है, ठीक है, अब इसको निकाल दें, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रूनिंग। ट्री बन चुका था लेकिन इससे डाटा नहीं आ रहा, ये भी ट्रेनिंग में हो बट टेस्टिंग में नहीं, आप कंपनी के पास इस तरह का डेटा है नहीं, तो यू कैन पोस्ट प्रून। बात समझ आई कि नहीं? जी सर। सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रूनिंग। ये मैंने दोनों समझा दिए आपको। हार्ड ट्री कंस्ट्रक्शन डू नॉट स्प्लिट ए नोड इफ दिस वुड रिजल्ट इन द इंफॉर्मेशन गेन फेलिंग बिलो ए थ्रेशोल्ड। इस केस में आपका थ्रेशोल्ड भी बहुत सॉरी इंफॉर्मेशन गेन ही बहुत कम आएगा। डिफिकल्ट टू चूज एन अप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, मसलन अब मैं ये कहता हूँ 0.02 इंफॉर्मेशन गेन आया है, बाकी दो एट्रीब्यूट्स का इंफॉर्मेशन गेन आया है 0.01 और एक का है 0.15। हाँ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। 0.02, 0.01, 0.015 ये है। अब बज़ाहिर तो 0.02 सब में ज्यादा है, ऐसे ही है ना? यस सर। लेकिन क्या 0.02 की अपनी कोई वर्थ है? इट इज वेरी लो, गेन बहुत ही कम है, तो ऐसे एट्रीब्यूट को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आप एक थ्रेशोल्ड भी बना सकते हैं कि अगर प्योरिटी इतनी हो, एटलीस्ट 20% हो, देन आई विल गो फॉर दैट, सो दैट विल बी ए प्री प्रूनिंग। पोस्ट प्रूनिंग मैंने आपको जिस तरह बताई कि get a sequence of progressively pruned tree, use a set of data different from the training data to decide which is the best pruned tree। आप जब टेस्ट डाटा गुजारें उसमें से आप देखें अगर कोई पाथ, कोई रूल is never ever going to use, then you can prune it। The CN tree की enhancement allow for continuous values attribute, dynamically define new discrete values। आप ये भी कर सकते हैं सीएम ट्री में कि जो कंटिन्यूस वैल्यूज होती है, मैंने आपको बताया उनको डिस्क्रिटाइजेशन की करनी होती है, तो डिस्क्रिटाइजेशन आप रीसेट भी कर सकते हैं। मतलब एज को मैंने 30 से 40 को यूथ कहा है, मे बी मैं 25 to 40 आई कैन से यूथ, यू कैन डू दिस। हैंडल मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज, असाइन द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, assign probability to each of the possible values। जो नल वैल्यूज इसमें होती हैं, जो मिसिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी डिसीजन ट्री में ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं।
एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन क्रिएट न्यू एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वन दैट आर स्पार्सली। अगर आपका डाटा स्पार्स है तो उसकी भी, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें फिर ये होता है कि लेट्स सपोज आपका ये एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ नल है, यहाँ ये स्पार्सिटी है। तो इस केस में और भी डाटा है, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ भी है, यहाँ है। आप ये देखेंगे ये जो नल है ना, इस रो में ये जो वैल्यू है ये और ये किस रिकॉर्ड के सबसे करीब है? कोई फ्यूचर में आया हो या पास्ट में आया हो, किस रिकॉर्ड के ये सबसे करीब वैल्यू है? जिस रिकॉर्ड के ये सबसे करीब है उसमें सी की वैल्यू क्या थी, उसमें जो भी सी की वैल्यू थी वही आप यहां भी कॉपी पेस्ट कर दें। इस तरह आप डाटा को फिल कर सकते हैं, क्योंकि फीचर ज्यादा नहीं चेंज हुआ, बाकी पूरा रिकॉर्ड आपने देखा उससे तकरीबन मैच कर रहा है। तो जो सी की वैल्यू वहां है वही होनी चाहिए थी, ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो वैल्यू आई नहीं है। इसको हम कहते हैं ऑटो करेक्ट डाटा। ठीक है, क्लियर? टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, रेपिटेशन एंड रेप्लिकेशन। सर ये हेडिंग मिसिंग एट्रीब्यूट दोबारा बता दें। मैं ये कह रहा था कि आपके पास इस तरह से रिकॉर्ड आ रहे हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई, और ये आपका क्लास एट्रीब्यूट है सी ए। सर ये तो आपने एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन बताया है ना। हाँ, तो मैं ये इनपुट डाटा में मैं बता रहा हूँ ना, अगर स्पार्सिटी है, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू मिस है, तो अब आप इसको नल भेजें ट्री में तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसको क्या हम ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हिस्ट्री? तो उस केस में आप ये देखेंगे कि क्या कोई और हमारे पास रिकॉर्ड आया है जिसमें ये और ये वैल्यू ए बी डी और ई की वैल्यू इसके वेरी क्लोज हो। ठीक है, अगर आप वो रिकॉर्ड फाइंड कर लेती हैं जिसमें ये वैल्यू बड़ी क्लोज है, उसमें सी की वैल्यू क्या थी वही वैल्यू यहाँ पेस्ट कर दें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, और ये नल भी खत्म हो जाएगा। राइट, यस, ये था जी सारा डिटूर ऑफ डिसीजन ट्री। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बेसियन क्लासिफायर। एनी क्वेश्चन? ये सर ये मतलब क्लोनिंग जो कर रहे हैं हम, मतलब क्या कैसे करेंगे इसकी? ट्री बना के तो नहीं कर सकते सर? पोस्ट प्रूनिंग की बात कर रहे हैं आप? सर प्री है या पोस्ट है? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? पोस्ट प्रूनिंग की आप कर सकते हैं। आप ये देखें, आपने ट्री तो वो मॉडल खुद बनाएगा, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि बेसिकली आपने इसी के थ्रू ही करवानी है मॉडल से। आप ये देख सकते हैं अगर कोई रूल यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो रूल आपको निकाल देना चाहिए ना अपने नॉलेज बेस में से। ठीक हो गया सर। वही प्रूनिंग है आपकी। तो सर ये मतलब फिर बेस्ट यही है कि स्प्लिट करने से पहले ही मना कर ले। हाँ, स्प्लिट करने से पहले कर दे, लेकिन उसमें आपको और फ्यूचर में पता नहीं होता ना कि फ्यूचर में सर इस फिर वो रूल से रिलेटेड टेस्ट को डाटा फिर आएगा नहीं क्या आएगा। करेंगे। जी सर तो फिर टेस्ट में भी वो आ जाएगी ना ब्रांच, हो तो फिर नहीं, मैं वो ये कह रहा हूं कि आपने, अगर कभी कभी ये होता है कि लेट्स सपोज जब आपने ट्रेनिंग डाटा लिया कंपनी का, पिछले साल का डेटा लिया, कंपनी आपको करंट डेटा तो कम देती है ना, उसके लिए आपने ट्रेन करना है मॉडल, तो डायनामिक्स कंपनी के वही हैं, ठीक, आपने ट्रेन कर दिया, सब कुछ कर दिया, ट्री बन गया, हर चीज बन गया, डिप्लॉय हो गया, लेकिन हु नोज के फ्यूचर में कोई ऐसी ब्रांच है जो उसके से रिलेटेड अब डाटा रहा ही नहीं है, नहीं आ रहा, तो अब वो रूल यूटिलाइज नहीं होगा। रखें आप बेशक, तब भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो ये होगा कि आपकी एफिशिएंसी उससे इंप्रूव होगी अगर आप वो ब्रांच को कट कर देते हैं, उस रूल को निकाल देते हैं। एटलीस्ट उसको क्लासिफायर उस रूल को कंपेयर नहीं करेगा। सर ये टेस्ट से पता चलेगा कि ये आगे यूज नहीं हो रहा। जाहिर है वो टेस्ट के बाद पता चलेगा कि आपको कोई यूज इसका यूज ये डाटा आ ही नहीं रहा। अगर आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगा फिर तो आप उसको प्री प्रूव क्यों नहीं कर देंगे? ठीक है,
Mhm. Okay. So attendance, please. Mohammed Farhan, Yes, sir. Tuba, Yes, sir. Saad, Present. Mohammed Kashif, Present, sir. Usama, Yes, sir. Pete Sami, Present, sir. Irfanullah, Present, sir. Amna, Present, sir. Tahmina, Present, sir. Tania, Present. Abdul Rahman, Present, sir. Mohammed Usama, Present, sir. Saif, Present, sir. Shahzeb, Present, sir. Nasir, Nasir, Mohammed Zubair, Present, sir. Talha, Yes, sir. Shabir, Shabir, Shabir है? Yes, sir. माइक नहीं चल रहा, कोई नेट का मसला। उजैर, उजैर, रीता, Present, sir. अनम, Present, sir. अदील, अदील, Yes, sir. उमर, उमर Yes, sir. कामरान, Present. फरजाद, Present, sir. Umar. Present, sir. अब्दुल हन्नान, Yes, sir. फरजाद, Present, sir. जहरा, Present, sir. तस्बीहा, Yes, sir. रेहान, Present, sir. नईम अख्तर, नईम अख्तर, अब्दुल हई, अब्दुल हई, अली हसनैन, Present, sir. मोहम्मद हारिस, Present, sir. वलीद अंजुम, Present, sir. जहांजेब, Present, sir. आयशा फारूक, Present, sir. मोहम्मद शुएब, Present, sir. मोहम्मद उमर, Present, sir. मोहम्मद इस्माइल, Present, sir. कुमैल। Present, sir. ओके, ऑल गुड। तो फ्राइडे को मिलते हैं फिर विद प्रेजेंटेशंस। ओके, सर आपसे बात करनी थी एक। मेरी अभी मैं मीटिंग में, मुझे असल में रश करना है। आई एम रशिंग टू अनदर मीटिंग। अब ईमेल कर दें मुझे। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हम्म।